مقبول صاحب، جب بچی آپ کو ملی اس وقت کس کنڈیشن میں تھی، کس حالت میں آپ کو ملی؟ ہمیں تو اس کنڈیشن میں ملی کہ چہرہ پہچاننے کا قابل نہیں تھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی میڈیا کے ذریعے کہ آپ نے جب یہ کہا کہ یہ وانٹڈ مفرور ہے، آپ نے اس کی تصویر کسی بھی سوشل میڈیا پہ چلائی ہے؟ آپ نے میڈیا پہ چلائی ہے اس کو؟ آپ نے اخباروں میں چلائی ہے اس کی تصویر؟ اس کے لیے تو یہ پاکستان تو اس کے لیے بہت بڑی دنیا ہے. اس کی زندگی تنگ کرنے کے لیے بہت ہی سمپل فارمولہ ہے. انویسٹیگیشن ٹیم جب یہ کرتی ہے اس کی تصویریں شائع کرتی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے 2 لاکھ روپے انعام کا بھی جو ہے وہ کیا ہوئے. میں اشرف جان صاحب سے اتنی سی گزارش کروں گا، اگر وہ 2 لاکھ کا کہہ رہے ہیں تو میں ایک یہاں غریب بندہ ہوں، لیکن میں اشرف جان صاحب کو 4 لاکھ کا انعام دے دوں گا، لیکن وہ مجرم سامنے لا کے قانون کے کٹرے میں کھڑا کر کے اور جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، جو قانون کے مطابق ہے، وہ سزا اس کو دلا دے. یہاں پہ اگر اردو سپیکنگ والے کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پورا پاکستان الٹ جاتا ہے، لیکن ایک پشتون کے ساتھ، ایک بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور نہ وزیر اعلیٰ کو پتہ ہے نہ ڈی آئی جی کو. کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت تک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ افراد. ناظرین، آج ہم مسلم آباد لانڈی کے علاقے میں اس وقت موجود ہیں. گزشتہ 1.5 ماہ پہلے یہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کہ 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور پھر اسے لاوارثوں کی طرح ایک پلاٹ کے اندر پھینک دیا گیا. اہل خانہ نے بچی کے کپڑوں سے اس کو پہچانا اور وہاں پہ جانا کہ یہ ہماری بچی ہے. پولیس نے ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے کہ 1 دن میں 2 دن میں ہم آپ کے ملزم کو پکڑ لیں گے، تو پولیس کی جانب سے بھی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی. آج ہم اہل خانہ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. بچی کے والد صاحب مقبول صاحب ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں. ہرپل نیوز کی پوری ٹیم ان کے ساتھ دکھ میں پورے برابر شریک ہے اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ لوگوں نے کہاں کہاں احتجاج کیا، کہاں تک گئے، کیوں ان کو انصاف نہیں دیا جا رہا، تھانے کی جانب سے ان کو کیا کہا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت؟ خیر، شکر الحمدللہ. کیا معاملہ پیش آیا بچی کے ساتھ؟ آپ سے ہر چیز بتائی ہے، پہلے بھی احتجاج کیے ہیں اور بھی جگہ سے ہمیں معلوم ہے، تو تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں کہ معاملہ ہوا کیا؟ معاملہ تو سب کو پتہ ہے کہ شروع سے کیسا ہوا، کیونکہ 1.5 مہینہ گزر گیا. جو پہلے ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ہمیں تو یہ حادثے پہ بھی بہت دکھ ہے، لیکن اس کے بعد ہمارے کو جو زیادہ دکھ ہے وہ پولیس کی کارروائی پہ ہے کیا اور بڑے افسروں پہ، کیونکہ ہم نے پہلے دن 18 تاریخ کو جو جب لاش ملی بچی کی، تو اس سے پہلے تو جو کچھ بھی نہیں ہوا وہ تو سب کو پتہ ہے، سب میڈیا پہ آیا کہ ہمارے ساتھ نہ ہمارا FIR کاٹا گیا اور نہ ہمارے ساتھ اور کوئی پولیس کا تعاون معاون تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا. ہم نے کسی کو بولا نہیں کہ کسی کو ہٹاؤ یا سسپینڈ کرو. ہم نے بولا چلو کوئی بات نہیں ہے، ان کی غفلت تھی، چلو ہو گئی. لیکن میں نے بولا چلو ابھی بچی کا جو لاش ملا، پھر میڈیکل رپورٹ کے حساب سے جو زیادتی ہوا، پھر وہ جس تشدد کے ساتھ اس کو مارا گیا، تو میں نے بولا یہ پولیس لاپتہ ہونے کی غفلت کو دیکھ لے گا اور ابھی ایسا کارروائی کر لے گا کہ ہم مطمئن ہو جائیں گے. کیونکہ اگر غفلت بھی کرے گا اور اس کے بعد پھر مجرم کو قابو بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو میں زیادہ پریشان اس بات پہ ہوں کہ جب لاش مل گئی تو ہم 4 گھنٹے داؤد چورنگی میں بیٹھا رہا. اہل محلہ اور علاقہ مکین سب ہمارے ساتھ تھے، جتنے بھی غریب لوگ ہیں، جتنے بھی درمند لوگ تھے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے 4 گھنٹے تک. تو مجھے بہت زیادہ افسوس بار بار ہو رہا ہے کہ کوئی MPA یا MNA، نہ کوئی IG، نہ DIG، نہ DG رینجر، کوئی محکمہ، کوئی ادارے والے ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں تو اس ٹائم سے بھی بہت زیادہ دکھ ہوا کہ دیکھو اتنا زیادتی کے باوجود ہم پورا محلہ ہمارے ساتھ داؤد چورنگی میں بیٹھا رہا. 400-500 بندے تھے جتنے بھی تھے لاش کے ساتھ. تو میں نے بولا کہ
ये पूरे कराची के जितने इदारे इसके सरबराह सब हमारे पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मसला था, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी। तो उस टाइम कोई नहीं आया। फिर उसके बाद हमने बोला चलो एसएसपी आया, अरब मेहर साहब जो इन्वेस्टिगेशन एसएसपी है वो तो पहले भी आया था, जैसा लाश मिल गई तो उसने हमें यकीन दहानी कराई। अशरफ जान भाई ने भी यकीन दहानी कराई। उस टाइम वही सिचो नहीं था, अभी सिचो है कि 2-3 दिन में हो जाएगा। तो मैंने वो किसी बंदे ने आवाज़ दिया कि ये सब कुछ लिख दो कि 2-3 दिन में हो जाएगा। तो मैंने बोला सही है लिख दो। तो फिर अशरफ जान भाई ने ज़बान निकाला और ज़बान पे हाथ रखा कि हम पठान लोग हैं, ज़बान पे भरोसा नहीं है। मैं तो दुख में था और हम तो हर बंदे के ज़बान को देखते हैं। अभी मुझे तो किसी का दिल का इल्म नहीं है कि ये बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। इसके अच्छा, ये अशरफ जान साहब की जानिब से जो एक तस्वीर शाया की गई है और जारी करदा तस्वीर उन्होंने एक चलाई है और बताया गया है कि डीएनए से उस आदमी की शनाख्त हुई है और वो मोहल्ले से भी उस दिन से गायब है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? वो तो उसको पता होगा, क्योंकि हमारी बच्ची, मैंने अपनी बच्ची को हाथ तक भी नहीं लगाया। जब से लापता हुई बस ऐसा समझो, उसके बाद हमने हाथ भी नहीं लगाया, न किसी हमारे घर वाले ने हाथ लगाया, न हमारे कोई रिश्तेदार ने हाथ लगाया। बच्ची ये लोग ले गए और इसने सब मेडिकल भी किया, सब कुछ किया। तो इसको पता होगा कि मुजरिम कौन है कौन नहीं है। अभी इन लोगों को तो मेरे ख्याल में जब ये बच्ची मिल गई उसके बाद 1 हफ्ते में इन लोगों को ये पता लग गया, क्योंकि मैंने बोला था कि मुजरिम खुद चीखे मार के बोलेगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। तो अल्लाह की तरफ से वो चीखे तो उसकी सुनाई नहीं दी गई और न चीखे किसी ने सुना, लेकिन वो उधर से भाग गया। मुजरिम अपने आप को साबित कर दिया। फिर पुलिस ने जो डीएनए टेस्ट से उसकी बच्ची को ले गया या भाई को या वालिद को, उससे डीएनए टेस्ट मैच हो गया, फिंगरप्रिंट सब कुछ मैच हो गया कि ये मुजरिम है, सब कुछ इसने किया, ज्यादती भी इसने किया और कत्ल भी इसने किया। तो तकरीबन ये तो इन लोगों को पहले हफ्ते में पता लग गया होगा, क्योंकि जो बंदे थे डीएनए टेस्ट के पास ले जाते थे, उसके बाद इन लोगों ने किसी को टच नहीं किया और टच करना छोड़ दिया। तो मुझे पता लग गया कि ये लोग मंजिल तक पहुंच गए, कि ये ट्रेसिंग हो गया कि कौन है कौन नहीं है। अगर बात इस पे लाई जाए तो सबसे मुश्किल काम जो है वो तो उस मुजरिम ने खुद कर लिया, जगह छोड़ दिया और साबित कर दिया कि मैं मुजरिम हूँ। फिर ट्रेसिंग इन लोगों ने जो किया उसमें भी पता लग गया कि यही है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है उससे मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि 1 महीना गुजर गया, अभी तक कोई रिजल्ट भी नहीं आया। हम खुद भी इधर उधर भाग रहे, कोशिश कर रहे, लेकिन पुलिस का जो कहना है कि इधर नजर आया, जो किसी ने इतला दिया, हम पहुंच गए, उधर से भाग गया या उधर नजर आ गया, 10-15 दफा यही कहानी हो गया। तो इससे तो मुझे और ज्यादा दुख होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं, इंसान अगर होता तो फिर पुलिस को ऐसा पता लग गया कि फलाना जगह किसी ने देख लिया, तो इन लोगों से कैसा बच गया। या ये बोल रहा है कि मोटरसाइकिल पे जा रहा था, किसी ने देख लिया, फिर कैसा बच गया। इससे तो कब्र में बंदा नहीं बच सकता पुलिस से अगर ये चाहे। अच्छा मकबूल साहब, जब बच्ची आपको मिली उस वक्त किस कंडीशन में थी, किस हालत में आपको मिली? हमें तो उस कंडीशन में मिली कि चेहरा पहचानने का काबिल नहीं था, लेकिन कपड़ों से हमने पहचाना कि ये मुनीबा है। लेकिन चेहरा मेरा तो उसका ऐसा हो गया था कि सब यार दोस्त उधर मेडिकल अस्पताल में जो मेडिकल हो रहा था तो मैं करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका चेहरा पहचानने का नहीं था। मेरा ये दोस्त मूसा भाई, सब कुछ अस्पताल में इसने संभाला। और फिर जो मेडिकल रिपोर्ट आया तो मैं बोल रहा हूँ, कोई पुलिस हो या एसएसपी हो या एसएच हो, अगर वो मेडिकल रिपोर्ट देख ले तो मैं बोल रहा हूँ सबके बच्चे हैं, तो वो बहुत गुस्से में आए होंगे, क्योंकि ये ऐसा ज्यादती और तशद्दुद, फिर ऐसा मारना, क्योंकि उसका कोई हड्डी साबित नहीं था, सब हड्डी टूट गए थे, चेहरा उसका खराब, सर उसका पटा हुआ, तो उसके बावजूद भी इसने कुछ नहीं किया। नाजरीन, 7 साल की बच्ची जो घर से निकली चीज़ लेने की खातिर, और जब वो लापता होगी, कुछ अगले रोज़ उसको उसकी लाश मिलती है। वो घर से निकली छोटी बच्ची, दरिंदगी की यहाँ पर मैं क्या मिसाल दूं कि एक दिल इंसान का फट जाता है। इस तरह के वाक़या जो आजकल आए रोज़ रूनुमा हो रहे हैं, तो हमारी हुकूमत को
हमारे इदारों को कोई इस तरीके का लाएअमल लाना चाहिए, कोई इस किस्म की सज़ा इन दरिंदा, इन जानवर लोगों के लिए हो जो इनको दी जाए और आने वाले वक्त में कोई ऐसे मामलात पेश ना आए। बच्ची के वालिद और अहले खाना का जो गम है वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि एक बाप जिसकी वो बच्ची थी 7 साल की, उसके दिल पे जो गुजर रही होगी। नाज़रीन, पुलिस और इदारे, इनकी जानिब से कोई इनके साथ तामुन नहीं किया जा रहा, ना कोई MNA MPA, ना कोई सियासी पार्टी। जब कोई और फंक्शन होते हैं, कोई और होते हैं, कभी 25 दिसंबर हो रहा है, कभी दूसरा हो रहा है, बेनज़ीर की ये बरसी हो रही है और दीगर प्रोग्राम सब होते हैं, जब किसी के साथ, किसी गरीब के साथ ज़्यादती होती है, तब हमारे इदारे क्यों खामोश हो जाते हैं? ये हमारे इदारों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। आपने किन किन लोगों से एहतजाज किया, किन किन लोगों के पास आप गए, इसके बारे में भी थोड़ा नाज़रीन को। हम तो एले माले वाले हमारे साथ ऐसा खड़े हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ भाइयों से भी बढ़ के। जिस टाइम भी मैंने बोला है, रात हो या दिन हो, जिधर भी मैंने बोला है, ये लोग अपने 100 काम छोड़ के हमारे साथ जाते हैं। हमने दाऊद चुरंगी में 2 एहतजाज किया, फिर अभी 23 तारीख को 23 दिसंबर को हम प्रेस क्लब चले गए, उधर भी एहतजाज किया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि IG या DIG या वज़ीर आला, इन लोगों को शर्मिंदगी हो रहा है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। शायद गरीब लोगों के साथ मिलने पे इन लोगों को शर्मिंदगी हो रहा है। जुल्म को अगर देखा जाए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे साथ पहले दिन से मिल जाते, लेकिन अगर गरीबी को देखता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ शायद इन लोगों को गरीब लोगों के साथ मिलने पे शर्मिंदगी हो रहा है। इसलिए ये लोग ये नहीं देख रहे कि दाऊद चुरंगी में अगर आ रहा है, दाऊद चुरंगी बंद कर रहा है, या अगर प्रेस क्लब में आ रहा है और ये बार बार ये सवाल कर रहा है कि GIT बन जाए, या वज़ीर आला हमारा प्रयास सुने, या IG सन हमारा प्रयास सुने, या DG रेंजर हमारा प्रयास सुने, या DIG हमारा प्रयास सुने, और ये नहीं सुन रहा है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि इसको शर्मिंदगी हो रहा है कि हमारे पास औरतें जा रहे हैं, मोहल्ले वाले गरीब लोग, बच्चे जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, जवान जा रहे हैं, और ये सब को देख के हमारे पास नहीं आ रहा है। हमारा मसला, इसको कुछ मसला नजर नहीं आया होगा, या ये जुल्म जो है ये कोई जुल्म नहीं होगा। पता नहीं कि क्या वजह है कि हमने 3 दिन पहले उधर बोला, 23 दिसंबर को हमने प्रेस क्लब में एहतजाज में बोला कि हम GIT का बोल रहे हैं कि GIT बन जाए हमारे साथ IG, और सबसे भीख मांग के ताउन का बोला है कि हमारा प्रयास सुने। अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। तो शायद मैं इस बात पे परेशान हूँ कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि इसमें गरीब बंदे का कोई हैसियत नहीं है, अमीर लोगों का बहुत बड़ा हैसियत है। अच्छा मकबूल साहब, यहाँ पे जो मामला हो गया, आप लोग, पुलिस नहीं सुन रही, 1.5 माह गुजर चुका है इस मामले को, आगे का क्या लाएअमल है? आगे कहाँ, किस तरफ आपकी डायरेक्शन? बस अभी तो हम ये डायरेक्शन कर सकते हैं, अभी 3 दिन बाकी है जुम्मे को, तो हम मजबूर हो गए, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हम खुद भी गरीब लोग हैं और एहले मोहल्ले वाले भी बहुत गरीब लोग हैं। एक दिन का दिहाड़ी अगर ये छोड़ देवे तो इनके लिए भी मसले बनते हैं, लेकिन ये लोग ये अपने मसले बनाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे जुल्म के खिलाफ ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो अभी इंशाल्लाह आने वाले जुम्मे को, क्योंकि मुझे पता लग गया कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हम अपना फरियाद या वज़ीर आला हाउस के सामने जाएंगे, बच्चों को भी निकालेंगे, लेडीज़ को भी निकालेंगे, बुजुर्गों को भी निकालेंगे, इंशाल्लाह सब इंशाल्लाह निकलेंगे। या वज़ीर आला हाउस के सामने जाएंगे, या गवर्नर हाउस के सामने जाएंगे। ये अभी जो आप लोग हैं, ये पूरा जो मजमा बैठा हुआ है, ये इसी मीटिंग के लिए बैठा हुआ है कि हम यही आइंदा के अमल तय कर रहे हैं। या दाऊद चुरंगी को ब्लॉक करेंगे। कुछ मुअज़्ज़िज़ीन लोग भी हमारे साथ ताउन में है कि वो बोल रहे हैं कि अभी तक ये नहीं हुआ, हमारे को पहचानता नहीं है, लेकिन जुल्म हमने पहुंचाया कि ये जुल्म हमारे साथ हुआ, उसको हमने अपना प्रयास सुनाया। उसने बोला हम आपके साथ खड़े होंगे, चाहे कैदाबाद में हो, चाहे दाऊद चुरंगी में हो, चाहे वज़ीर आला हाउस के सामने हो, चाहे गवर्नर हाउस के सामने हो, इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़े होंगे। तो इंशाल्लाह अभी हम तो यही कर सकते हैं। और तो हम अगर बोले कि हमारे को पैसे ला के देगा या पैसों पे हम काम करेगा, वो तो हम नहीं दे सकते।
और ना हमारे साथ कुछ है कि हम इन लोगों को देवे। हमारे साथ जो था वो तो चले गया। नाज़रीन, मकबूल साहब की दुहाई आप लोगों ने सुनी, किस तरीके से कोई इदारा या कोई सियासी पार्टी या कोई भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, एहतजाज पे एहतजाज करते जा रहे हैं, मामला बढ़ता जा रहा है। 1.5 माह का दुरानिया गुजर चुका है और अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। IG सिंध साहब से, वज़ीर आला सिंध साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये एक बाप है, इसकी दुहाई सुनी जाए। हम सब की दरख्वास्त है इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। पूरा कराची इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की खातिर कई बार इकट्ठा हो चुका है। हज़ारों लोगों का एहतजाज हुआ, सब कुछ हुआ, सोशल मीडिया चलाए गए, लेकिन इस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा मकबूल साहब, कायदाबाद थाने के SHO की जानिब से पोस्टें चलाई जा रही हैं, जिस तरीके से तस्वीर साथ उसके बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए का उन्होंने इनाम रखा है कि जो मुलज़म की कोई इतला देगा या मुखबरी करेगा, 2 लाख का इनाम रखा हुआ है। तो इस बारे में आपकी क्या राय? अगर कहानी इस पे होता कि पैसों का बात होता तो जितने लोग हमारे साथ जा रहे हैं ना और अपना काम छोड़े, तो मैं इनसे अगर 2-2 हज़ार रुपये चंदा जमा कर देता तो 10 लाख रुपए जमा कर लेता। और इतना भाग दौड़ ये लोग नहीं करता था तो हम 10 लाख रुपए जमा कर लेता और हम इधर से बोल लेता कि जिसने मुजरिम को पकड़ा तो हम 10 लाख रुपए दे देंगे। पैसों से मुजरिम नहीं पकड़ा जा सकता है। मुजरिम आप पकड़ोगे तो उसके लिए कुछ रास्ता ढूंढोगे, कुछ कोशिश करोगे। आप अगर इदारे इतने कमजोर हो गए कि अभी कहानी पैसों पे आ गया तो फिर तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो फिर पैसों पे लोग काम अपना करेगा। फिर अगर इसी चो 2 लाख देगा तो फिर एक अमीर बंदा फिर इसी चो के पास जाएगा भी नहीं इस SP के पास जाएगा। वो 50 लाख रुपए इनाम रखेगा और अपना काम खुद चलाएगा। कानून ऐसा नहीं है कि तुम पैसे 2 लाख रुपए, उसने जो करना था वो तो कर लिया। अभी उसका कोई खानदान होगा, वो कोई आसमान से तो नहीं गिरा है, किसी से पैदा हुआ है, किसी के घर में बड़ा हुआ है, किसी के घर में खेला होगा, उसका कोई खानदान होगा, तो उससे मालूमात करना चाहिए। पैसों से अगर मालूमात है तो हम इधर जितना मजमा बैठा हुआ है सबको बोल लेंगे, 1000 2 हज़ार जमा कर लेंगे, फिर आराम से इधर बैठ जाएंगे। अगर पैसों से कहानी बनता है। इसने मालूमात क्या है, मुझे ये नहीं दिखा है, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन लोगों से सुन रहा हूँ कि SHO साहब ने 2 लाख रुपए इनाम रखा है कि हम जिसने इतला दे दिया तो हम 2 लाख रुपए देगा। वो 2 लाख रुपए तो उसका अपना कहानी है। मुझे ये बताए कि इसने इस केस में किया क्या है, क्या मालूमात किया है, किसको रिमांड दिया है, किसको उठाया है, किसको पकड़ा है, इसके बारे में। अगर उसका एक भाई इन लोगों ने जेल में भेजा है सहूलतकारों में, अगर वो भाई इसको ये बयान देता है कि मेरे को भाई ने फोन किया, मैं भाई के पास गया जो मुजरिम है काका मने, उसके पास मैं चले गया, मैंने उसको घर से कपड़े उठा के दे के गया हूँ, मैं उसको पैसे दे के गया हूँ, तो उस भाई के बयान उधर तक तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपने भाई के पास कपड़े ले जाता हूँ घर से, पैसे ले जाता हूँ घर से, तो उसको मैं ये भी बोलूँगा कि आपने इतना बड़ा वाक़या किया, इसको भाई को भी पता होगा, क्योंकि मैं अपने भाई को निकालूंगा तो मुझे पता होगा कि इसने कुछ किया है ना। तो फिर इसके भाई का बयान आगे क्यों नहीं है कि उसने और कुछ नहीं बताया। इसको चाहिए कि उसके भाई का बयान आगे भी ले लेता, कुछ डंडा मारता, कुछ करता कि आपने जब पैसे और कपड़े दिए तो उसको कहाँ भेज दिया। अच्छा मकबूल साहब, अभी IG सिंध SSP साहब, IG सिंध साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से क्या मुतालबात हैं आपके? मैं तो बार बार चीखे मार के कह रहा हूँ कि मुझे मेरा एक ही मुतालिबा है कि मुझे मुजरिम चाहिए, और मैं मुतमईन नहीं हूँ। अगर मैं बार बार ये बंदों को इकट्ठा कर रहा हूँ, कभी एक के दर पे जा रहा हूँ, कभी दूसरे के दर पे जा रहा हूँ, तो मैं खुद जा रहा हूँ, मेरे पास तो कोई नहीं आया है, मेरे पास कोई भी नहीं आया है, मेरे साथ किसी ने राब्ता भी नहीं किया है। मैं सिर्फ एक लेडीज़ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत, और उसका टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, शेला रज़ा साहब का, शेला रज़ा साहिबा का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो सबसे पहले हमारे पास आई भी हुए। फिर मैं जब दफ्तर पे गया हूँ 1.5 घंटा टाइम भी मुझे दिया है, फिर उसके दोबारा 2 घंटे और टाइम भी हमारे को दिया, इधर आया है, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और अमान मसूद भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ ताउन करेगा, लेकिन वो इन लोगों के लिए भी कुछ करेगा, क्योंकि वो पार्टी का लोग है, मैं तो उसे मजबूर नहीं कर सकता हूँ। पीपल पार्टी का लोग है और पीपल पार्टी तो इन लोगों के लिए भी कुछ करेगा।
तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब ड्रामा और ये ड्रामे वाली कहानी है, क्योंकि आईजी साहब या नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो या डीजी रेंजर हो, वो हमारे दुख में अगर शरीक है तो मेरे साथ आके 5 मिनट पे बैठने के साथ वो शर्मिंदा नहीं होगा, उसका इज्जत और बढ़ेगा कि एक गरीब लोगों के साथ जुल्म हुआ है और ये लोग उस गरीब लोगों के पास पहुंचे तो हम उसको दुआ देंगे, उस पे तो कोई शर्मिंदगी नहीं। मेरे पास कौन है, आईजी साहब है या जो भी है, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा और कोई भी नहीं आया है कि मैं बोलूं कि चलो मेरे पास कोई आ गया, मैं मुतमईन हो जाऊंगा कि मेरे को बोल दिया कि ये ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो हम आपके साथ खड़े, तो मैं थोड़ा बहुत दलासा तो मुझे मिल जाएगा, मैं बोलूंगा कि चलो ये लोग हमारे पास आए, जैसे आए ऐसा करेगा भी, तो हमारे पास तो कोई आया भी नहीं है। मैंने आईजी साहब को कम से कम 10-15 दफा फोन किया, लेकिन वो तो गरीब बंदे का फोन है, वो तो न उसके साथ से होगा न कोई उसको पता होगा कि ये कौन है कौन नहीं, जैसा गिनती जाता है वो काट दे, जैसा गिनती जाता है वो काट दे, क्योंकि अगर उसको पता भी होगा तो हमारे को क्या बोलेगा। नाज़रीन, आपने मुनीबा के वालिद साहब की गुफ्तगू सुनी है कि आईजी सिंध साहब से भी 10 से 15 दफ़ा रब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया या कोई किसी किस्म की कोई एक्शन या कोई इस मामले को नहीं देखा। हमारे साथ और भी कुछ इलाका मुअज़्ज़िन मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये सारा मामला क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? तारिक शमसी। अच्छा, आप थोड़ा सा आगाह करें नाज़रीन को कि जो डीएनए टेस्ट में जिस लड़के की शिनाख्त हुई है वो इसी मोहल्ले का था या क्या आप जानते हैं उसे, आपके इलाके के? बिल्कुल, ये 16 नवंबर 2022 को ये बच्ची घर के पास गली से लापता हुई और फिर तीसरे दिन इसकी एक कचराकुंडी में तशद्दुद इसकी लाश मिली और रिपोर्ट से पता चलता है कि इसके साथ 4-5 मरतबा इसके साथ ज्यादती की गई है और फिर तशद्दुद करके इसको शहीद किया है। तो हमारे बहुत सारे जहनों में सवाल हैं नौजवानों के और सोशल मीडिया पे ये सवाल होते रहते हैं। जब भी कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसके बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं, वहाँ से दीगर लोगों को उठाया जाता है, फिर मुख्तलिफ चीज़ों से डीएनए होता है। इन्होंने तो इलाके से लोग उठाए, डीएनए भी हुई और फिर वो उस मुजरिम तक भी पहुँच गए कि ये बंदा है। तो यहाँ अहले मोहल्ला पूछते कि आज तक उस जो मुजरिम है, जो मफरूर है, वांटेड है इस वक्त, उसका घर अभी तक सील नहीं हुआ। मैं थोड़ा माजी में जानना चाहता हूँ। यहाँ एक सिंधी डाकू जो था, उन्होंने एक बंदे पे पिस्टल रखी बैंक के पास और उसने अपने डिफेंस में उस पर गोली चलाई। उस पे वज़ीर आला सिंध ने एक्शन लिया इसीलिए क्योंकि वो सिंधी था, वो डाकू सिंधी था, इसलिए वज़ीर आला ने इस पर एक्शन लिया और उस बेगुनाह वो जिस पे उन्होंने पिस्टल लगा था वो आज 5 सालों से जेल में बंद पड़ा हुआ है। इससे पहले मैं 1 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ, यहाँ कुरंगी में डकैती की वारदात में एक नौजवान महाजिर को कत्ल किया एक डकैत ने। यहाँ गवर्नर साहब पहुंच जाते हैं, वो भी उर्दू स्पीकर और ये भी उर्दू स्पीकर, वो आके पहुंच जाते हैं, उस पर एक्शन भी होता है, वहाँ से भी मुअत्तल भी होता है। तो हम सवाल पूछना चाहते हैं, कराची के अंदर 50 लाख पश्तून रहते हैं, क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? इदारों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके इजाज़त के बगैर यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक चिड़िया पर भी नहीं मार सकती है। 47 दिन हो गए वो दरिंदा इस रियासत में घूम रहा है। आया इन्होंने किस हद तक इन्वेस्टिगेशन की है? जब आप किसी भी केस में जाते हो तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल सवाल होते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी मीडिया के जरिए कि आपने जब ये कहा कि ये वांटेड मफरूर है, आपने उसकी तस्वीर किसी भी सोशल मीडिया पे चलाई है, आपने मीडिया पे चलाई है, इसको आपने अखबारों में चलाई है इसकी तस्वीर, उसके लिए तो ये पाकिस्तान तो उसके लिए बहुत बड़ी दुनिया है। उसकी जिंदगी तंग करने के लिए बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इन्वेस्टिगेशन टीम जब ये करती है उसकी तस्वीरें शाये करती है। आप मुख्तलिफ इस केसेस देख लें, आज तक कोई नहीं जानता कि इसकी तस्वीर कहाँ, किसी चौक पे लगी है, किसी अखबार में लगी है, किसी न्यूज़ में चली है, नहीं चली है। और इसको तसल्ली दी जाती है मकबूल साहब को कि अगले 2 दिन में आपको खुशखबरी मिलेगी, अगले 2 दिन में। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं, ये एक रियासत है, बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि यहाँ जंगल का कानून है। ये पाकिस्तान के अंदर कानून है, ये एटॉमिक पावर है और एक कातिल, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है। और फिर ये जिस तरह से इस मासूम 7 साल परी के साथ जो इन्होंने ज्यादती की है, उस दरिंदे ने, एक तो नाबालिग 7 साल बच्चे के साथ उन्होंने ज्यादती की, घर से अगवा करके 3 दिन इसके साथ तशद्दुद भी किया, ज्यादती भी की और फिर इसको शहीद भी किया।
और 47 दिन हो गए ना आईजी सिंध इंस्पेक्शन ले रहे हैं, ना वज़ीर आला सिंध ले रहे हैं, इसलिए कि ये पश्तून लड़की है। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम इस रियासत का हिस्सा हैं, हम इस बातों में नहीं जाना चाहते हैं, ना लिसानी और मसलकी बुनियादों पे। हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, पाकिस्तान आइन को तस्लीम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का आइन ये हमें फंडामेंटल राइट देता है कि हर पाकिस्तानी शहरी अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता है और लड़ सकता है। तो ये हमारा बुनियादी हक है। इंशाल्लाह अगले जुम्मे को इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें पुरअमन एहतजाज से नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरा आइन ये मुझे इजाज़त देता है कि मैं पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊँ। क्योंकि जब तक इदारे इसमें सुस्त रोई का शिकार होंगी, 1.5 माह से उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कमज़ोरियाँ दिखाई हैं। इसका हमारे पास एक ही तरीका है, कानून और आइन के मुताबिक। हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कानून को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। इदारों का भी हम एहतराम करते हैं, तमाम सिक्योरिटी इदारों का, चाहे पुलिस हो या रेंजर्स हो या दीगर इदारे हो, एहतराम उनकी अपनी जगह पे है। लेकिन सवाल उठाना, सवाल करना, यह हमारा बुनियादी हक है। दुनिया की कोई ताकत हमें न सवाल से न अपने हक के आवाज़ बुलंद करने के लिए, छीनने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह अगले जुम्मे को हम एहतजाज करने जा रहे हैं। पिछले हमने 2 मरतबा दावत चुरंगी भी बंद की पुरअमन तरीके से। हम पुरअमन लोग हैं। और लास्ट वीक 23 दिसंबर को हमने प्रेस क्लब पे भी हमने भरपूर तरीके से एहतजाज किया, तमाम मीडिया को हमने इंगेज किया। हम फिर भी ये मुतालबा करते हैं यहाँ SHO साहब से भी, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में हमने एहतजाज किया तो SHO साहब को मुअत्तल किया, 2 पुलिस वाले को भी मुअत्तल किया। 1.5 माह से उन्होंने इस केस को आगे नहीं बढ़ाया। तो अहले महल्ला सरब एहतजाज है। इस बार भी हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम ये दावत भी देते हैं आपकी मीडिया के ज़रिए। इसमें हम तमाम सियासी, मजहबी और तमाम तंजीमों को भी बुलाना चाहते हैं। डे 1 से मकबूल भाई के साथ मुस्लिमाबाद का जो अहले महल्ला है, तमाम लोग इसमें बराबर के शरीक हैं। और आगे भी इंशाल्लाह जितने भी तावन होगी हम जारी रखेंगे। लेकिन फिर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ इदारों से और पुलिस वालों से कि आप इस केस को इस तरह से मजीद हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आपने कानूनी आपको इजाज़त देता है, आप इसको फॉलो करें और उस मुजरिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। नाज़रीन, अहले इलाका हमारे भाई की आपने गुफ्तगू सुनी है कि पुलिस ने इनको किसी किस्म का ये पुलिस से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, कोई इनके लिए पुलिस ने काम नहीं किया। और भी हमारे कोई मोअज़्ज़ीन हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि उनके इस मामले पे क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या सनौर मान नाम है मेरा और यहाँ का रिहायशी हूँ। एक अदना सा मतलब कि समाजी कारकुन भी हूँ और अपने इलाके के लिए जो अपनी गुंजाइश और बस में होती है मतलब कि बागड़ोड़ी में। ये मकबूल साहब के साथ आप दुख में बैठे हुए हैं, इनके साथ जो बच्ची का मामला पेश आया है, क्या समझते हैं क्या होना चाहिए इस तरह के जानवर नुमा लोगों के लिए? ये मामला जो पेश आया है, इसकी भी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये हम ये नहीं समझते कि मकबूल के साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, यहाँ रहने वाले तमाम तर साथियों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, जितनी भी पख्तून बरादरी रहती है, हर कोई समझता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। लेकिन इस ज़्यादती को आला हुकाम ने अपनी ज़्यादती नहीं समझी। अगर वज़ीर आला सिंध या IG या DIG XYZ यानी कोई भी ऑफिसर चंद लम्हों के लिए अपने ग्रेबा में जाके देख लें कि काश खुदा न खास्ता अगर ये उनकी बच्ची होती तो क्या करते। लेकिन यहाँ गुर्बत की वजह से अगर किसी अमीर की बेटी होती तो शायद हफ्ता भी नहीं लगता। हमें 2-3 हफ्ते जो है DNA के लिए टाला गया, तारीख पे तारीख दे दी गई। फिर उसके बाद जो है DNA के बाद फिर मुलजिम के लिए वो जो है तारीख पे तारीख दे गए। अब उसके बाद जो है ये सोशल मीडिया पे सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने 2 लाख रुपए इनाम का भी जो है वो किया हुआ है। मैं अशरफ जान साहब से इतनी सी गुजारिश करूँगा, अगर वो 2 लाख का कह रहे हैं तो मैं एक यहाँ गरीब बंदा हूँ, लेकिन मैं अशरफ जान साहब को 4 लाख का इनाम दे दूँगा। लेकिन वो मुजरिम सामने ला के कानून के कटरे में खड़ा करके और जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, जो कानून के मुताबिक है, वो सजा उसको दिला दे। नाज़रीन, अहले इलाका का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुल्ज़म चाहिए, जहाँ से मर्जी पकड़ के लाएं, हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। कोई पेशे रफ्त नहीं हो रही इदारों की जानिब से। और भी इलाका कोई मुअज़्ज़िन है, उनसे भी हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? यूसुफ माना नाम है, मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट मलीर का मैं प्रेसिडेंट हूँ।
سر یہ مقبول صاحب کے ساتھ جو یہ بچی کا حادثہ پیش آیا ہے اس پہ کیا آپ کی رائے ہے, کیا ہونا چاہیے؟ ملزم نہیں مل رہے ابھی تک. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور خصوصی نعمت بھائی کا کہ مثال کے طور پہ ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے یعنی طرح طرح کے میڈیا کی ٹیم یہاں آتی ہے. اس پہ میں ہم تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا آپ ہماری اس کیس میں منیبہ کے کیس میں میڈیا والے آپ ہماری آواز بن چکے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سوشل میڈیا کے اور جو الیکٹرانک میڈیا تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اہل علاقے کی کچھ باتیں جو ہے نا وہ اپنے کیمروں میں بند کر کے پورے یعنی جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ویلکم اور شکریہ, بہت بہت مہربانی. مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تو اس دن سے یہ تو مسلم آباد ہے, یہاں گل احمد, داؤد چالی, فردوس چالی تقریباً علاقوں میں بچوں میں خوف کا ایک جو ہے وہ ماحول قائم ہے کہ اب یقین کرو کہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا کوئی گھنٹہ بچی یا 15 منٹ لیٹ آتی ہے تو سب کے ساتھ ایک غم ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہماری بچی کے ساتھ ایک اور واقعہ نہ ہو جائے. تو اس دن بھی رات کو تقریباً کوئی میں گھر پہ آیا 11 بجے تو ہمارے محلے میں ایک بچی تھی تقریباً کوئی 9 سال کی بچی تھی. تو لوگ میرے پاس آئے کہ یہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی تھی روڈ پہ, لیکن ہم نے کہا یہ یہاں نزدیک گھر کی ہوگی, لیکن میں ریڑھی والا کہہ رہا تھا جو ریڑھی والا لے کر آیا اس کو. تو ریڑھی والا کہنے یہ تھا تقریباً 4-5 گھنٹوں سے یہاں بیٹھی, میں نے ریڑھی لگایا مین روڈ پہ داؤد چالی پہ, لیکن میں جا رہا ہوں یہ ابھی تک بیٹھی ہے. تو اس کو شک, اس نے پوچھا بچی سے کیا مسئلہ ہے بچی آپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ مجھے والدہ مارتی ہے XYZ, اس نے جو بچی کے ذہن میں آ رہا تھا. تو پھر میں نے کہا رہتی کہا, پہلے تو بتا نہیں رہا تھا کہ میں کبھی کہہ رہا تھا میں شہر کے علاقے میں کہہ رہا تھا کہ کبھی قصبہ رہتا ہوں کبھی یہ, لیکن ان سے میں نے پیار محبت میں جب باتیں نکالی تو اس نے کہا میں فیوچر موڑ پہ رہتا ہوں. تو پھر میں نے SHO عادل شاہ سے بات کی شرافی کا, اور میں نے کہا سر یہ مسئلہ, میں تانے خود گئے بچے کو لے گئے. جب تانے گئے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ تقریباً کوئی 10-15 منٹ بعد اس کے گھر والے تانے پہنچ گئے شرافی کوٹ. تو جب پہنچے تو وہ یقین کرو ایسے داڑے مار کے رو رہے تھے, اور انہوں نے مجھے ایسے گلے سے لگایا کہ تو وہ ان کو یہ غم نہیں تھا, ان کو یہ غم تھا کہ ہمارے بچے کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی زیادتی نہ ہو جائے, حادثہ پیش نہ آ سکتے یا کوئی جو ہے نا ہم شرمندہ نہ ہو, کیونکہ یہ بہت بڑے واقعے ہوتے ہیں نا پورے. تو وہ بڑے پریشان تھے. پھر ان کو فیوچر مانسیرا کے لوگ تھے, مانسیرا کالونی کے. تو انہوں نے کہا جب سے یہ تقریباً اس کے تقریباً 3-4 گھنٹے ہوئے جب گھر سے نکلی ہے تو ہم وہی سوچ رہے تھے کہ خدا نخواستہ منیبہ والا واقعہ اس بچی کے ساتھ نہ ہو جائے. تو منیبہ سب بچوں کے لیے ایک جو ہے نا وہ ایک بچے جب سوچتے ہیں کہ منیبہ کے بارے میں کہ جو ہے نا تو یقیناً اللہ نے تو اس کو شہادت دی ہے, لیکن سب کے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ منیبہ کے ساتھ جو ہے بڑا غلط ہوا ہے, زیادتی ہوا. ناظرین, علاقہ معززین کی آپ نے گفتگو سنی, کس طریقے سے غم و غصہ ان کے اندر آپ لوگوں دیکھ بھی رہے ہوں گے, سن بھی رہے ہوں گے. 7 سال کی بچی ہے, ابھرتا ہوا پھول ہے, ہوا کی بیٹی ہے وہ. کوئی کس طرح اس قسم کا جانور بن سکتا ہے, اس درندگی کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ ایک 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی. اس نے کوئی شرم حیا ہوتی ہے, کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے. وہ کسی کی بھی بچی ہو سکتی تھی. میری سب علاقہ مکینوں سے, کراچی کے لوگوں سے, پاکستان کی عوام سے میری یہ درخواست ہے کہ مقبول بھائی کے ساتھ آگے کھڑے ہوں, احتجاج کریں. جب تک ان کی بچی کو انصاف نہیں مل جاتا ان کے ساتھ سپورٹ کریں. ہم سب کو مل کے اس طرح کے معاملات کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا, نہیں تو یہ آئے روز لوگوں کو موقع ملتا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات پیش کر رہے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ نعمت اللہ بھائی اس وقت موجود ہیں, سماجی کارکن بھی ہیں, میڈیا سوشل میڈیا سے بھی تعلق ہے ان کا, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, اور سوشل میڈیا کی زینت ہوتے ہیں. جہاں بھی کہیں ظلم زیادتی کسی کے ساتھ پیش آتی ہے نعمت اللہ بھائی کو وہاں دیکھا جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں بھی یہ مقبول بھائی کے ساتھ غم میں شریک ہیں. جتنے احتجاج ہوئے وہاں بھی ان کے ساتھ تھے, اور مزید بھی آگے جب تک بچی کو انصاف نہیں ملے گا تو انہوں نے ساتھ رہنے کا عزم کیا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر, آپ سنا خیر. نعمت اللہ بھائی, آپ یہاں پہ مقبول بھائی کے ساتھ یہاں پہ احتجاجوں میں بھی دیکھے جا رہے ہیں, ابھی تک بھی آپ ان کے ساتھ غم میں بیٹھے ہوئے ہیں,
تو کیا مطالبات ہیں, کس طریقے سے آگے چلیں گے, کیا آگے کا لائے عمل؟ دیکھیے یہ کیس جو ہے نا ایک واضح طور پہ یہ ایک عام بچے کو بھی سمجھ آ جائے گا. میں باقی چیزیں تو اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ کاکا منے گھر سے نکل رہا تھا تو اس کے ایک بھائی نے اس کو کپڑے بھی دیے, پیسے بھی دیے, اور پولیس اس کو اٹھا کے ایک دن رکھتی, پھر اگلے دن اس کو جیل بھیجی. بھائی اس کو کوٹو نا, اس کو پتا ہوگا جب ایک بھائی سے اس کا رشتہ ہوتا ہے نا تو اس کو پتا ہوگا میں اس کو کہاں بھیج رہا ہوں, تو اس سے نکلواؤ کہ وہ ملتان گیا ہے, وہ KP کے گیا ہے, وہ کہاں گیا ہے, یہ تو اس کا بھائی بتائے گا. اور جس گھر میں یہ واقعہ ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوئی تھی, اس کو سیل بھی نہیں کیا گیا. کتنی غفلت کا مظاہرہ ہے. اور طارق بھائی نے جس طرح ایک بات ایڈ کی نا کہ یہاں پہ اگر کوئی سندھی مرتا ہے وہ چور بھی ہوتا ہے, میں معذرت کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں, میں قوم پرستی کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے وزیر اعلیٰ تک آواز اٹھا دی جاتی ہے. لیکن جب یہاں پر ہماری بچی کے ساتھ اتنی درندگی کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے. کیا یہ ملک سب کے برابر کا نہیں ہے؟ یہ کیا صرف ایک قوم کے لیے بنا ہے؟ یہاں پہ اگر اردو اسپیکنگ والے کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پورا پاکستان الٹ جاتا ہے, لیکن ایک پشتون کے ساتھ, ایک بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اور نہ وزیر اعلیٰ کو پتہ ہے, نہ DIG کو. کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا یہاں پہ؟ صرف SSP آئے اور چلے گئے. اس واقعے کو دیکھا ہی نہیں, انہوں نے اپنا درد ہی نہیں سمجھا. اب اس کے باپ سے پوچھے نا اس پہ کیا گزر رہی ہے روزانہ. وہ کبھی ادھر کی جا کے دھکے کھا رہے, کبھی اس کے پاس جا رہے, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں, اسے تو کوئی بلا ہی نہیں رہا. پھر در بدر کر دیا. ہاں در بدر کر لیا. اور SHO کے ساتھ جب ہم لاسٹ ٹائم بیٹھے تو SHO صاحب نے کہا کہ پچھلی بار تو شیرپاؤ کالنی میں 14 اموات ہو گئے تھے بم دھماکے میں, ان کے لیے تو DIG آئے, SSP آئے, وزیر اعلیٰ آئے, یہ آئے, وہ آئے. کہتے یہ تو اعزاز کی باتیں ہوتی ہے, آپ فکر نہ کریں, آپ کے لیے تو MNA صاحب آیا, یہ آیا, میں آیا, میڈیا آ رہی ہے. بھائی یہ کون سے اعزاز؟ اس کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ اس کے اعزاز قرار دے رہے ہو. ہمارے پشتون معاشرے میں اس کو شرم سمجھا جاتا ہے, آپ اس کو اعزاز قرار دے رہے. یہ اعزاز آپ کیوں نہیں لے لیتے؟ یہ بڑا اعزاز آپ لے لینا, آپ کی بچی کے ساتھ کل ہوئی ہو جائے تو. ایک شخص جو بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر چھوٹا سا ایک واقعہ ہو جاتا ہے, پولیس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, وہ قاتل نکال کے دے نا. ثناء الرحمان بھائی نے جیسے ایڈ کی ایک بات کہ انہوں نے 2 لاکھ روپے انعام رکھے, ہم 4 لاکھ روپے دیتے, چلو آپ قاتل نکال کے ہمیں 2 دن میں دے دو, 2 دن کے اندر نکال کے دے دو, 4 لاکھ ہم سے لے لو نا. قاتل تو نکال کے دو. سسٹم آپ کے ہاتھ میں, وردی آپ نے پہنی, بندوق آپ نے پکڑا ہوا ہے, ٹیکس ہم بڑھتے, آپ کو پیسہ آ رہا ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ یا تو یہ اختیار ہمیں دے دو, ہم دیکھتے کہ چور چوری کیسے کرتے اور زناکار زنا پھر کیسے کرتے. کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ پاکستان کی عوام کو ایسے جو معاملات آج کل رونما؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں اور معذرت کے ساتھ, پاکستان کی آپ نے بات کی, جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوتا ہے نا اور وہ 9 مہینے کا یا 10 مہینے کا پیدا ہوتا ہے نا, وہ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے. لیکن یہ بچہ جب 8 مہینے سے کم ہوتا ہے نا, جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا, یہاں پائج ہوتا ہے. پہلے قوم بنتی, پھر جا کے ملک بنتا ہے. یہاں پر ایسا سسٹم ہی نہیں ہوا. یہاں پہ پہلے ملک بنا, بعد میں قومیں بنی. یہ ملک اپائج ہے اور یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. اپائج کا مطلب سمجھتے ہو؟ لنگڑا لولا. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. یا بس جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ روئے گا, انصاف تو اس کو ملنا نہیں ہے. غریب خوار ترین ہو چکا ہے اس وقت. اس وقت مزید اور بھی خوار ہوگا, اور آئندہ میں جو 5 سال کے حالات دیکھ رہا ہوں نا صبح سندھ کے, تو وہ بہت بدترین ہے. اگر ہم لوگ سب ٹھیک نہیں ہوئے نا اور یہی حالات رہے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ آگے بڑھ پائے گا پھر 5 سال کے. اچھا, ابھی آنے والے دن میں جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے ہاؤس کے سامنے, تو کیا اس میں مطالبات ہوں گے آپ کے؟ مطالبات ایک ہی مطالبہ ہے, ہم کوئی اور نہ ان سے ہم گاڑیاں مانگ رہے, نہ ان سے ہم پیسے مانگ رہے, نہ کوئی ہم نے ہیلی کاپٹر کی ڈیمانڈ کی. ایک ہی ڈیمانڈ کی, جو قاتل ہے اس کو گرفتار کرو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے یار, ہم ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے. چلو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا قاتل کو گرفتار کرنا. اتنی فورسز, رینجر, ادارے, پتہ نہیں کہاں سے بندہ نکال دیتے ہیں. ایک بندہ DSP جس کی لاش ملتی ہے افغانستان سے, وہاں سے نکال کے دیتے, تو پھر یار ایک کاکا منی جیسے ایک بدترین شخص جس کو ہم قرار دے سکتے کہ اس نے ظلم کیا, اس کو کیوں نہیں نکال سکتے؟ یہ جب میرے گھر سے آپ رات کو بندہ اٹھا کے لے کے جاتے ہو کہ یہ دیر نواب کے پوتے اور ان کے ساتھ زمینوں کا مسئلہ چل رہا ہے, تو پھر جب آپ میرے گھر پہ ریڈ کر سکتے تو پھر آپ کاکا منی کو بھی تو گرفتار کر سکتے ہیں نا, اس کا بھی تو پتہ ہوگا. تو ریاستی اداروں کو تو ایک ایک بندے کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. یہ کون سی کی ایک پوری ریاست ایک بندے کے ساتھ بے بس نظر آ رہی ہے. یہ تو سوالیہ نشان ہے ان پر, ان کو خود سوچنا چاہیے. ناظرین, نعمت اللہ بھائی کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے.
इदारों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान उन्होंने बना के रख दिया है। जब मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ माजरत के साथ, अगर इससे भी नहीं हुआ और इंसाफ नहीं मिला इस बच्ची के लिए तो इंशाल्लाह फिर हम कॉम्परस जमातों से रब्ता करेंगे, जैसे मंजूर पशीन हो गया, सनान खान हो गए, बाकी ये लोग हो गए। तो ये हम मजबूरी की तरफ वहाँ पे जाएंगे और हम बताना चाहते हैं कि मजबूर ना किया जाए। उसके वालिद साहब इंतहाई परेशान है और इस बच्ची को इंसाफ दे। हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते, हमें डर लगता है इन चीज़ों से। नाज़रीन, नेमतुल्लाह भाई की आपने गुफ्तगू सुनी, इदारों के लिए एक सवालिया निशान बन चुका है। मुनीबा का जो मामला पेश आया उसके बाद दीगर इलाके में, शहर में जितने बच्चे हैं, खौफ व हिरास उनमें फैला हुआ है कि एक बच्ची के साथ ये मामला पेश आया है। और साफ लफ्ज़ों में नेमतुल्लाह भाई ने भी बता दिया है कि अगर ये मामला नहीं टैकल किया गया जल्द से जल्द तो हम फिर कौम परस्ती की तरफ उन तंजीमों से भी रब्ता करेंगे। कैमरामैन राना अदनान के साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।